So, hello dear students. In this series of videos, we will be covering grade 10 science NCERT book. And from the first video, we are going to begin the first chapter, that is chemical reactions and equations. To the point, we will be covering each and every topic given in the NCERT book in a detailed manner, and thereby also be providing you some of the practice questions which have been asked in the previous years for your revision of the board examination. So our chapter is chemical reactions and equations, and as on the first chapter, first page of this chapter, there have been certain situations which they have given us to consider. The first one is the milk is left at a room temperature during summers. अब देखिए, जब भी मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर समर्स में रखते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं कि जो मिल्क है उसको जनरली हमारे जैसे कहा जाता है कि जो दूध है वो फट गया है ना. तो इन सम वे वी सी दैट डी नेचर्ड मिल्क, जो डी नेचर्ड मिल्क होगा वो कहीं ना कहीं इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक इन टू द मिल्क इटसेल्फ. एंड ऑल्सो लाइक इन द सेकेंड सिचुएशन दे हैव गिवन कि जो ग्रेप्स है अगर वो फर्मेंट हो जाते हैं, तो अगर ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा जो ग्रेप्स के बाद बनेगा, that is going to be entirely different from the grapes itself. And thereby if the food is cooked, तो food क्या हो जाएगा, soften हो जाएगा है ना, और उसका nature जो है वो change हो जाएगा. And thereby food when it is being cooked, it is an irreversible change. तो किसी भी तरह से हम उसको reverse नहीं कर सकते. And if the food gets digested in our stomach, so whatsoever the situations they have given here, might it be the respiration, in all these situations one thing that is being common is that कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास, जो फाइनल सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन होगी, उसकी नेचर इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट टेकन इनिशियली. जो शुरुआत में जो चीज़ थी उससे बिल्कुल ही इंटायरली वो डिफरेंट होने वाली है. तो क्या हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो सिचुएशंस है दे आर ऑल ऑफ अ केमिकल चेंज. डेफिनेटली वी हैव रेड दिस इन क्लास 9, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज, that the chemical changes are irreversible and somewhat the final product formed is completely different from the initial substance taken. So in all these situations, looking at what it is called as a chemical change, our chapter is chemical reactions. So whensoever we say that a chemical change has occurred, we say a chemical reaction has taken place. So can I write it like this? So chemical reactions occur when chemical change takes place. So इसी के साथ हमें सबसे पहले जो अपने चैप्टर की इनिशियली जो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आ रही है कि हम इस चैप्टर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, और इसके साथ ही केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे. हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एंड देन वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड द वे ऑफ राइटिंग देम. ठीक है, तो इसी के साथ सबसे पहले in order to introduce us with some of the chemical reactions that has took place, and along with how to write a chemical equation, there have been 3 activities which are given in the book. तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है, इट इज़ वेरी इजी एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमें 2 चीज़ें चाहिए जो हमारे पास मेन होनी चाहिए. वन इज द मैग्नीशियम रिबन, and other thing we are going to do is we are going to heat it in the presence of oxygen. Heating in the sense we are going to burn it. So whensoever something is burnt in the presence of oxygen, can we say something like combustion has taken place. But before that, अगर magnesium ribbon जो है, Mg here is the symbol of magnesium. ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एक्टिविटी 1.1 है, एक्टिविटी 1.1 के अंदर हमें मैग्नीशियम रिबन के बारे में बताया गया है कि जो मैग्नीशियम है बहुत ही ज़्यादा एक
रिएक्टिव मेटल है एंड दैट इज वाई मैग्नीशियम एट पड़ा पड़ा जो है अपने सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो दैट इज वाई हमें यहाँ पे एक्टिविटी में बताया है कि हमें अच्छे से मैग्नीशियम रिबन को रब करना है विद द सैंड पेपर। ठीक है, तो सैंड पेपर के साथ जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि इसके ऊपर से वो जो ऑक्साइड की लेयर है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जब रिमूव हो जाती है तो प्योर मैग्नीशियम मेटल जो है वो एक्सपोज हो जाता है एंड देन इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़कर टोंग्स की हेल्प से जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बंसन बर्नर वी अब सी कि एक डेजलिंग वाइट फ्लेम जो है वो यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा। तो वर्ड टू रिमेंबर इज डेजलिंग वाइट फ्लेम, जिसके साथ ये बर्न होने वाला है। तो डेजलिंग वाइट फ्लेम इज समथिंग दैट यू कैन नॉट सी लाइक एट वंस ग्लांस। तो आपको थोड़ा सा ऐसे आंखें चुंधियाने वाला इसका जो होगा वो फ्लेम दिखाई देगा और उसके बाद क्या होगा कि सारा का सारा मैग्नीशियम जब बर्न हो जाता है तो वो ऐसे ऑब्टेन होगा हमें एक व्हाइट कलर का पाउडर दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अभी जो व्हाइट कलर का पाउडर है, अब एक चीज यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा कॉमन है कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो जब भी कभी कोई चीज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती है तो वो क्या है उसका ऑक्साइड बनाएगी। ऑक्सीजन के साथ कोई चीज कंबाइन करेगी तो उसका ऑक्साइड बनाएगी। तो यहाँ पे जो हमें चीज ऑब्टेन होने वाली है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है वो यहाँ पे हमें देखनी है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है। नेचर से मीनिंग होता है हमारा क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है या फिर क्या वो न्यूट्रल है। ठीक है, सो एक चीज हमने क्या याद रखनी यहाँ पे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे बेसिक होंगे और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अगर हम याद कर लेते हैं तो आगे भी हमें बहुत सारी क्वेश्चंस में से मदद मिलने वाली है। सो यहाँ पे हमने एक्टिविटी को तो समझ लिया है। नाउ लेट अस सी हाउ वी राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। चलिए फिर अब हम इक्वेशन को लिख के देखते हैं कि जो मैग्नीशियम था दैट रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने चीज जो देखनी है कि मैग्नीशियम जो है इट इज अ मेटल सो इट विल बी सॉलिड इन स्टेट। तो अब इसके ब्रैकेट में एस को मेंशन कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन है इट रिएक्टेड विद मैग्नीशियम, सो ऑक्सीजन गैस होती है तो ब्रैकेट में हमने जी को मेंशन किया and magnesium oxide is formed, so MgO which was again a white colored powder, so it's again solid। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है अगर हम इसको ध्यान से एनालाइज करें तो it is a skeletal chemical equation। The word I am using here is skeletal chemical equation। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने 9th ग्रेड में ये पढ़ा था कि जितना मास हम रिएक्टेंट का लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से एनालाइज करें देयर इज वन मैग्नीशियम बट देयर आर 2 ऑक्सीजन एंड अगेन इन द प्रोडक्ट देयर इज 1 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लैक हो रहा है वेयर एज जो नंबर ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जो सिमिलर एलिमेंट है उसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों जगह पर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, विल मल्टीप्लाई इट विथ 2। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे जो मैग्नीशियम थे वो 1 थे तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो अब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सेकेंड चीज, जब भी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर चेक करते हैं
तो उस टाइम के ऊपर हम क्या है कि ऐसा जो उसका नेचर चेक कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और जब भी कभी किसी भी मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसका हमें हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाज ऑब्टेन्ड, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो नेचर था दैट वाज बेसिक नेचर, ठीक है। अब ये बेसिक नेचर हमें कैसे पता चला, एक सिंपल सा हमने लिटमस टेस्ट किया। हमें पता है जब भी कभी किसी भी एक बेसिक सब्सटेंस में हम रेड लिटमस को डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, एंड ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू। तो हमने यहाँ पे रेड लिटमस को डाला तो वो ब्लू टर्न हो गया, दैट मीन्स कि ये जो हमारा सब्सटेंस है वो बेसिक है नेचर में। दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी कि मेटल के जो भी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स है वो सभी के सभी बेसिक ही होते हैं नेचर में, ठीक है। सो लेट अस राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी MgO। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैम MgO जो है इसको हम MgO ही क्यों लिखते हैं, MgO2 क्यों नहीं लिखते, या Mg2O क्यों नहीं लिखते, या फिर Mg2O2 क्यों नहीं लिखते। बट इट्स ऑल अबाउट remembering the chemical symbols of these elements and the chemical formula along with the charges। जैसे मैग्नीशियम जो होता है इसका सिंबल होता है Mg2 पॉजिटिव, एंड जो हमारा ऑक्साइड है उसका सिंबल है O2 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जो चार्ज होता है उसको उठा के हमने नीचे लिखना होता है इन ऑर्डर टू मेक अ फॉर्मूला। इसका भी अब 2 and 2 दोनों ही क्या है, सेम ही टेबल पे कट रहे, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में बना दैट वाज MgO, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा MgO व्हेन इट रिएक्टेड, अभी MgO सॉलिड था तो ब्रैकेट में भी S लिखना पड़ेगा। वाटर जो है वो हमारा क्या है, लिक्विड है, तो H2OL, एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH ट्वाइस। अब ये MgOH ट्वाइस भी कैसे बना, मैग्नीशियम इज Mg2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव। अब यहाँ पे इसका 2 उठाकर हमने नीचे लिखा और इसका 1। हम चार्जेस को हमेशा इग्नोर करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, ठीक है। तो अब 1 गया Mg के पास, OH के पास आ गया 2, सो यहाँ पे हमारा सिंबल बन गया है MgOH ट्वाइस, फॉर्मूला बन गया हमारा MgOH ट्वाइस। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नीशियम ऑन द रिएक्टेंट साइड दिया 1, मैग्नीशियम ऑन द प्रोडक्ट साइड इज अगेन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारे कितने हुए, 2 है। ऑक्सीजन हमारे 2 है, ऑक्सीजन इधर 1, लेकिन इस ऑक्सीजन को नहीं कंसीडर करेंगे, इस ऑक्सीजन को भी कंसीडर करेंगे, सो 1 + 1 अगेन 2, तो तीनों ही चीजें इधर बैलेंस्ड है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे हमारी जो पहली एक्टिविटी है वो फिनिश होती है। इसी के साथ चलिए अब इसी के साथ हम एक्टिविटी 1.2 को डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 1.2 जो है इसमें हमने 2 केमिकल्स की बात करी गई है हमारे पास। तो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 केमिकल्स के सॉल्यूशंस को बनाना है। एक जो हमारे पास केमिकल होगा, जो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है उसमें जो केमिकल हमारे पास होगा दैट विल बी लेड नाइट्रेट, और दूसरा जो हमारे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब में केमिकल होगा दैट्स गोइंग टू बी पोटेशियम आयोडाइड। जब हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्ट को वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व करके लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन के अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करेंगे तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा कि हमारे पास येलो कलर के पीपीटीज फॉर्म होंगे, ठीक है। ये जो येलो कलर के पीपीटीज हैं ये हैं एक्चुअली में लेड आयोडाइड के PbI2 के, ये चीज हमने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो MCQ हो चाहे वो 1 वर्ड में किसी भी तरह से पूछे कि येलो कलर के पीपीटीज किसके होते हैं, तो वो लेड आयोडाइड के येलो कलर के पीपीटीज ऑब्टेन होते हैं। नाउ लेट अस राइट द केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमने सबसे पहले फॉर्मूलाज बनाने हैं। सो हम सबसे पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखें तो लेड का सिंबल होता है Pb2 पॉजिटिव, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 नेगेटिव। इसका 2 आया नीचे, इसका 1 आया नीचे, 1 चला गया Pb के पास, 2 आया NO3 के पास, सो फॉर्मूला बन गया हमारा PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। इसी के साथ हमारा दूसरा जो है वो है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का सिंबल होता है K पॉजिटिव, आयोडाइड का होता है I नेगेटिव।
इसका 1 इसके 1 नीचे, और हमारा सिंबल, हमारा फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे KL। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो लेड नाइट्रेट है यानी PbNO3 ट्वाइस है। ठीक है, जब ये सोल्यूशन था हमारा एक्वस सोल्यूशन, यानी हमने जिस भी चीज को, जिस भी सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, हम उसके ब्रैकेट में एक्वस मेंशन करते हैं। तो लेड नाइट्रेट के साथ जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास जो सब्सटेंस ऑब्टेन हुई है दैट इज लेड आयोडाइड PbI2, जिसके व्हाइट कलर के पीपीटीज थे। तो क्योंकि ये सोल्यूशन के अंदर ही है तो एक्वस, एंड डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स दी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो हमारे पास येलो कलर के पीपीटीज जो है वो लेड आयोडाइड का ऑब्टेन हुए, और इसके साथ ही हमारा पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हमें ऑब्टेन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को करना है बैलेंस। तो जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से कि जो हमारा लेड है वो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 1 है, तो प्रोडक्ट साइड पे 1 है। जो आयोडाइड है हमारे रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। तो हमने क्या करना है, इसको 2 से करा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पोटेशियम का जो नंबर है वो भी जो है ऑर्डर हो चुका है, तो हमने पोटेशियम के आगे भी यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 ऐड किया। अब नाइट्रेट को हम एज NO3 होल कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो नाइट्रेट है ये रिएक्टेंट साइड पे भी एज सच है और प्रोडक्ट साइड पे भी एज सच है। तो हम NO3 को इजी करने के लिए बैलेंसिंग जो एज अ होल कंसिडर कर लेते हैं। तो NO3 अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, बिकॉज आगे जो था 2 हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्टिविटी 1.2 ओवर होती है। नाउ लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 1.3। तो एक्टिविटी 1.3 के अंदर देखिए हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि जो हमारा एसिड है जब भी वो किसी एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो ये सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और ये जो सॉल्ट है बेसिकली ये मेटल और एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हमारे पास एक जो चीज लिबरेट होने वाली है दैट इज आवर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस फॉर श्योर हमें ऑब्टेन होगी जब मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा विद एन एसिड। अब मेटल भी यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए और एसिड भी हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। सो अब यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी गिवन है उसमें हमने एक कोनिकल फ्लास्क ली है और कोनिकल फ्लास्क का जो माउथ है उसको हमने बहुत अच्छे से क्लोज किया है यूजिंग अ कॉर्क, और इसमें से हमने एक ट्यूब को पास किया है, राइट। सो हमने सोल्यूशन लिया है यहाँ पे एक एसिड का विच इज आर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि एसिड जो है हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड इन द वाटर। अब यहाँ पे हमने एक मेटल लिया कॉल्ड है जिंक। जिंक के हमने ग्रैन्यूल्स को ऐड किया। एज सून एज विल ऐड द जिंक ग्रैन्यूल्स टू दी एसिड, यहाँ पे क्या होगा कि गैस जो है वो लिबरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस गैस को चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप एक बर्निंग स्प्लिंटर या फिर कोई भी बर्निंग कैंडल जो है अगर हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आते हैं यानी इसके माउथ के ऊपर ले आते हैं तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। जो पॉप साउंड वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां भी यूज होता है वहां पे आप आंख बंद करके हाइड्रोजन गैस का लिख सकते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि so and so gas was obtained, it starts burning with a pop sound, name the gas। तो आप वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है उसको लिखेंगे। सो एसिड जो है लाइक लेट अस से H2SO4 हमने लिया, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन हुआ क्योंकि डाइल्यूट है। मेटल जो है हमारे पास आ गया जिंक मेटल, सॉलिड है, सॉल्ट ऑब्टेन होगा हमारे पास जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, अब यहाँ पे ZnSO4 एक्वस ऑब्टेन हुआ एंड हाइड्रोजन गैस वाज लिबरेटेड। अपवर्ड एरो का मतलब है गैस एवोल्यूशन हुई है, गैस जो इवॉल्व हुई है। यहाँ पे बैलेंसिंग देखिए रिएक्शन की, जिंक इधर 2 है, इधर भी 2 है। सल्फेट को एज अ होल ट्रीट कर लेते बिकॉज सल्फेट जो है वो प्रोडक्ट साइड में भी जाकर जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, किसी तरह से चेंज नहीं हुआ। तो सल्फेट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। सो रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सो इसी के साथ मुझे लगता है कि हमने प्रीटी श्योर 2-3 चीजें हमने क्लियर कर ली है। इक्वेशंस के साथ हमने थोड़ी बहुत जो बैलेंसिंग है उसके बारे में भी बात करी है, और जो नीड है बैलेंसिंग की दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो भी हमने देख लिया। इसके साथ जो टर्म्स हमने देखनी है दैट आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन विच इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन,
और जो इक्वेशन हम वर्ड के तौर के ऊपर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन, एंड जो हमने सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन। इसके साथ आपकी बुक में थोड़ा बहुत बताया गया कि जो भी चीजें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं एक किसी भी रिएक्शन के, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, एंड जो भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे चीजें लिखी जाती हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और एक जो चीज आपने याद रखनी है कि इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो स्टेट्स हैं उनको हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, लाइक S इज फॉर सॉलिड, L इज फॉर लिक्विड, AQ का मतलब है इक्वल्स, अगर कोई भी चीज का सोल्यूशन might it be a certain solid salt or a liquid if it is dissolved in water, तो वो आपका aqueous में आ गया, and then liquid if it is a pure liquid, right? So यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात करी गई है। इसके साथ आप बैलेंसिंग की जो है थोड़ी बहुत मैं आपको इक्वेशंस देती हूँ जो कि आप प्रैक्टिस करके यू विल एंड अप कवरिंग दिस होल टॉपिक। सो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस।